One second, Manny. Yes, Manny, please go ahead. Yes, sir. So good evening. So, sir, I would like to probably, talk about taking the journalist bit forward, but not regarding the one you have referred to, but the journalism in Bollywood. And, how I would like to ask you and your opinion about it, that how these blind items are written. And Sushant was a major victim of it. And all these people these critics and film reviewers, they were writing all sorts of things about him, and so I also want to kind of ask you, what are your views regarding the people who are not kids of film stars, but other actors who have been successful and have come from outside? What is their role in cutting each other out? Okay, so first come first. As far as this dark articles, blind articles, whatever you call it, yellow journalism, whatever you want to call it, ऐसे पेड आर्टिकल्स अनफॉर्चुनेटली होते हैं. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, मीडिया में होना नहीं चाहिए. Where you should have a space for paid news items, but paid news items are there. ये अलग अलग शेप में अलग अलग चेहरे के साथ नजर आते हैं, लेकिन ये हर फील्ड में नजर आते हैं. आप रेडियो सुने, आप टेलीविजन देखें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप मैगजीन पढ़ें, आप फिल्मी मैगजीन पढ़ें, बिजनेस मैगजीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें. There's something called planted news. There's something called paid news. There's something called advertisement in the shape of news. So ads in the shape of news, planted news, paid news, blind articles. Blind articles is the fourth category. Paid news वो होता है जो कोई आपको पे कर रहा है to write something in that person's favor. ये पहला होता है ना. दूसरा होता है जो advertisement है in the shape of news. तो जहां पर आपको लग रहा है कि वो एडवर्टीजमेंट चला रहा है, खासकर रेडियो टेलीविजन बहुत होता है कि एंकर ने ही बहुत सारी चीजें बता दी है ना, किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया और वो लग रहा है न्यूज, लेकिन न्यूज नहीं है, वो एड है एक्चुअली. तो वो न्यूज इन द शेप ऑफ एड, ये दूसरा कैटेगरी. तीसरा कैटेगरी है जहां पर आप एक पेड जर्नलिज्म हो गया, पेड न्यूज हो गया. तीसरा है जो जिस ब्लाइंड आर्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं. ब्लाइंड आर्टिकल्स क्या होता है कि इट इज aimed at targeting a person who is not named. So ना वो benefit directly कर रहा है जिसके बारे में है, ना उसको mention कर रहा है, ना उसको identify कर रहा है, ना जिसके against में है उसको identify कर रहा है. Vaguely indications के तौर पे वो articles लिखे जाते हैं. जैसे मैनी और मेरे बारे में article लिखना है, मैनी लिखवा रही है एक article मेरे बारे में hypothetically, तो you will not be able to figure out anywhere the name of Manny. Nowhere it will be mentioned, nor Sunil Jha's name will be mentioned, but it will indicate Sunil Jha. कैसे? A journalist who comes on, who is active on digital media, he does a show in which he invites public. So it is talking about me, but not naming me. So you can say I am not being named, or it's not about you, but actually it is aimed at me. It is hurting me. It is going to harm me. ये ब्लाइंड आर्टिकल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एप्लीकेबल हो रहे थे. Without naming him, a lot of things were being written about him, like the man who behaves like a professor, the man who has come from a small town but has got 6 seats and he behaves like has got 12 hits. अब 6 hits किसके हुए? जिसकी 12 फिल्में हुई. 12 फिल्में किसके हुए? कौन सा है जिसकी अभी 2018-19 में रिलीजियस प्लेस को लेकर एक फिल्म आई? ये सब आप लिख दोगे लेकिन नाम नहीं लोगे. सुशांत के बारे में ये किया जा रहा था. इसका एक ही पर्पस होता है, टू कैरेक्टर असैसिनेट, हर्ट प्रोफेशनली, हर्ट पर्सनली विदाउट नेमिंग हिम. तो आपके ऊपर कोई ये डेफेमेशन नहीं डाल सकता, ये क्या कि आपने मेरा नाम ले लिया, मैंने तो नाम लिया ही नहीं, लेकिन वो आपको हर्ट करता है. तो सुशांत वाज फेसिंग दिस कैटेगरी कॉल्ड ब्लाइंड न्यूज. सो देयर इज अ पेड न्यूज, देयर इज अ एडवर्टीजमेंट, देयर इज अ प्रमोशनल न्यूज जो कि जस्टिफाइड भी है कुछ हद तक, जहां आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये प्रमोशनल है, तो वो भी चलता है, लेकिन उसमें कॉस्ट वॉस्ट सब अकाउंटेड होता है. बट बाकी जो 3 है इनमें कई बार अकाउंटेड नहीं होता है. एंड द वर्स्ट कैटेगरी इज द ब्लाइंड आर्टिकल्स, बिकॉज ब्लाइंड आर्टिकल्स आपको बहुत ज्यादा पर्सनली और प्रोफेशनली हिट करता है.
एंड एज फार द सेकंड इज कंसर्न, सेकंड क्वेश्चन, जो कंटेम्पररीज या जो लोग छोटे शहर से आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जैसे सुशांत छोटे शहर से आया and he was struggling and he was dealing with all these things like blind article, lobby, gangism, groupism. I won't call it nepotism because nepotism is different. It's not nepotism that he was suffering from. He was being targeted by gangism, groupism, cartelization जिसको बोलते हैं. तो कार्टेल को डील करने में लगा हुआ था. ऐसे जो बाकी लोग आए होंगे वो भी तो उसको डील कर रहे होंगे. ऐसा तो है नहीं केवल ये प्रॉब्लम सुशांत के लिए हुई होगी, ये तो सारे उन लोगों के लिए होगी जो लोग बाहर से आए. वरना ये लोग ये बात क्यों कहते कि हमें इतने साल लग गए और हमें नहीं मिल रहा. शरद सक्सेना is a fine example. He came from Jabalpur some 40 years ago and still struggling. He has not got a one film जहां पर उस आदमी ने अपने पोटेंशियल को दिखाया हो. 40 साल में कुछ तो सीखा होगा इंसान ने, लेकिन यहां पर तो एक्सपीरियंस को भी वैल्यू नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी परसेप्शन बना दिया. अब परसेप्शन पे इंडस्ट्री चल रही है, तो सुशांत का परसेप्शन बना देते, सुशांत को कोई एक्टर कोई डायरेक्टर लेता है. उनके पास अभिषेक कपूर जैसे डायरेक्टर नहीं होते तो उसको नहीं मिलता, क्योंकि लोग पीपल बिलीव्ड इन हिम. तो ऐसे लोग थे who believed in him. So sir, that is what I am saying. That is what we are saying, that we also kind of have to look at it, you know, from the angle of जैसे nepotism काफी बोलते रहते हैं. What my question is that Sushant was also targeted by people who were not part of family stars or kids. No, because there again, and I'll give you an example. Category. One, people who are outsider and are new, that is one category. Second category, people who are outsider but part of the cartel, part of the groupism, yes, part of the gangism. If they're part of the gang, if they're part of the group, if they're part of the cartel, then obviously they will do exactly what the all in the family जो nepotism की बात कर. Nepotism is a wrong word to use. Yes. Because nepotism, एक डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनता है, वो भी nepotism है. जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बनेगा, वो भी nepotism है. पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, वो भी nepotism है. एक एक्टर का बेटा एक्टर बना तो उसमें nepotism है. लेकिन ये nepotism तो हर सब्जेक्ट हर एरिया में है. And if the person is good, तो it's acceptable कि एक अच्छे पॉलिटिशियन का बेटा भी अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए. जॉर्ज बुश 1 का बेटा जॉर्ज बुश 2 हो, वो भी प्रेसिडेंट बन जाए, ये एक्सेप्टेबल है if you have the potential. But what is not acceptable is that when you try to take away the space from others. Yes. आप अपने को बढ़ाने what I'm saying is, बता रहे हैं. That's the problem. Sir, that is what I'm saying, that mostly the debates around Sushant are about, nepotism. No, that's the wrong debate. Yes. So that is what I want to say, कि जो हम इतना nepotism और kids या stars या colleagues को बोलते हैं, I think those people didn't trouble him as much as people who were from outside. Like for example, I'll tell you. Outside, but part of that group. Yes. Part of that cartel. Yes. Agree. So I think we as audience also need to understand that, because we sometimes unnecessarily are not fair to people who did not really do anything besides belonging to the industry. His contemporaries. So there's a mix. So if you put the war against all, and you do not segregate the bad from good. Yes. तो गुड आपने गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया ना, आपने गुड को भी उसी में डाल दिया. अब क्या होगा, आपके एंगर को देखकर, आपके बार बार बोलने के चक्कर में, अब 10 लोग सही बोल रहे हैं, 5 लोगों ने बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल दिया. अब जो गुड था ना, उसका भी परसेप्शन हो गया कि यार साहब हमको भी टारगेट कर, अब उसका भी नेगेटिव परसेप्शन. So sir, I just want to give some examples. Like for example, the name, first I'll take the names and then I will talk about it. So one is Parineeti Chopra. Now, when Parineeti Chopra did Shudeshi Romance with Sushant, okay, yes, and so when she came in this this Karan Johar show, and Karan Johar gave that option which he usually used to give with Sushant's name in it. So she said something, and he said Sushant, hot or not? She said not. और रीजन है उसका, बहुत स्पेसिफिक रीजन. 2 रीजन हो सकते. एक तो मे बी शी बिलीव दैट वे, ये एक रीजन हो सकता है. दूसरा स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. So that is what I'm saying, that then why do we blame the star kids? Maybe some of them have praised Sushant. No, I'm saying different thing. अगर मान लीजिए स्क्रिप्टेड है, but you're part of, but it's a personal view show ना. One second, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, I agree with you. मैं प्रोड्यूसर हूँ. Yes. और मैंने ये शो ऑर्गेनाइज किया, ये प्लेटफॉर्म पे मैं शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. मैंने मैनी को पहले ही बोला कि टुडे यू आर कमिंग, बट आई वांट यू ना, इस बंदे के बात आएगा ना,
Don't Yes, I give a understand. positive thing. Yes, This is called scripted. ये भी हो सकता है, yes. ये natural भी हो सकता है, ये scripted भी हो सकता है. Because परिणीति चोपड़ा also has to get good films, she has to survive, तो उसको अपनी चिंता लगी हुई है. तो No, but sir, this is what, so this नहीं is बोलेगी what, yes, so this is what I want to point, that Pariniti Chopra is not a child of an industry or a film actor, and she has worked with Sushant, and she has praised him a lot during the interviews of Shuddheshi Romance. And when she came on Karan Johar's show in front of everybody, she said, apart from Karan, let's not consider Karan Johar shows the no, sir, but according to me, because Karan Johar show में तो clear हो गया ना. So अब clear हुआ ना, अब clear हुआ है, पहले तो नहीं था. नहीं, करण जौहर का शो पूरा स्क्रिप्टेड है. इसको रणबीर कपूर ने ही पूरा क्लियर कर दिया ना. डाउट है, आपने थोड़ी क्लियर किया है, मैंने थोड़ी क्लियर किया. रणबीर कपूर ने ही क्लियर कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा शो में, वरना ही विल टेल मी टू डू से दिस, ही विल टेल मी टू से दैट. तो डाउट ही कहां बचा? So sir, what I am saying here is that Deepika Padukone had also come on the show and he had asked her the same question. तो उन्होंने दीपिका को भी बोला होगा सुशांत के बारे में ऐसे बोलने के लिए. मैं कह रहा हूँ, but she did not. She said out of all the actors, Sushant is the best actor. My request to you is one thing. Please count Karan Johar show out of this, because ये clear हो गया है Karan Johar show is scripted. तो जो scripted है उसके बारे में पहले से आप डिसाइड कर रहे हो ना कि स्क्रिप्टेड है, तो वो तो सिखाया पड़ा है. नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि you are somebody who's trying to fit in and you're criticizing your own colleague outside Karan Johar show. Have you heard her criticizing him? No, I don't care, because when I was watching Karan Johar show and you have to care. Alive. No, you have to care. Why? I'll tell you why. Now we are talking 2021. 2021 में ये साफ हो गया है कि करण जौहर का जो शो है वो स्क्रिप्टेड है. अब मैं करण जौहर शो की कोई रेलेवेंस नहीं. अच्छा चलो, मैं I'll give you another example. Yes. So another example is this Neha Dubia. She does some show. Yes. पता नहीं रेडियो शो करती है, पता नहीं कौन सा करती है. उसमें आया था कार्तिक आर्यन in 2019. ठीक है. So she asked him this question कि which Mr. or Miss should close their Instagram account. ठीक है. And Kartik Aaryan said Sushant Singh. हाँ. Why did he say that? Why? that's now that is not Karan Johar show, na? No. I'm telling you, na. So yeah, exactly. It is about the way you want to look at it. Either you can look at it with a negative mindset, or you can look at it with a positive mindset. No, sir. One second. No. That is your mindset. No, your mindset is your mindset. My mindset is my mindset. So you have your view that maybe he said it because he has a problem. I feel इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव सुशांत सिंह राजपूत का. करेक्ट? सुशांत वाज मोस्ट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. People could not handle the kind of social response that Sushant could give. Okay. Sushant could talk to anybody and could interact with anybody, any number of people. वो कोई नहीं हैंडल कर पा रहा था, कोई नहीं. तो it could also be कि यार तू बंद कर देना, तू बंद करेगा तो लोग हमसे बात करेंगे, तू ही सारी बातें कर रहा है. It could also be in this way. Okay. It could also be in this way. Okay. So what I want to say is, उसके बाद नेहा दुबिया said very good answer. अब नेहा दुबिया को क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं बताता हूँ. एक शो करिश्मा कपूर भी करती है ना. करीना कपूर भी करती है. करीना कपूर खान. करेक्ट? वो भी रेडियो में एक शो करती हैं. उनको क्या जरूरत थी ये बात बोलने की कि यस यू शुड नॉट हैव योर फर्स्ट एक्टर, और जिसके साथ अब वो भी उसने करण जौहर के शो में बोला था, अपने शो में नहीं. ये उस वक्त बोला था. नहीं, मैं अभी शो पे आ रहा हूँ. ये उसने उस शो में बोला था कि यू शुड, इट्स अ बैड आइडिया टू मेक योर फर्स्ट एक्टर एज योर फर्स्ट एक्टर, व्हाटएवर, है ना. अभी अपने शो में शी कॉल्ड सारा अली खान. यस, करेक्ट. और सारा अली खान से व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वुड यू वांट एज योर पार्टनर. शी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, asked her this question. Sara Ali Khan ko Kareena Kapoor Khan was asking this question. Sara Ali Khan could have also given a diplomatic answer, like you are saying, but Sara Ali Khan completely bulldozed her with her answer. She said, I want somebody who's committed. I have a problem with people who break commitment and break families. This girl on Kareena Kapoor Khan's show telling her that there's a problem. That is also there. We also have to count that in.
देयर आर आल्सो पीपल बिकॉज तो वही तो मैं कह रही हूँ, अब वही तो मेरी डिबेट है कि हम सारा टाइम स्टार किड्स को ब्लेम करते रहते हैं, पर जो बाहर से आए हैं लोग वही अपने को क्रिटिसाइज करते हैं। सारा अली खान थी, वो इसलिए सारा अली खान आज भी सुशांत के बारे में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलती है। सर मैं यही तो बोल रही हूँ, मेरा डिबेट ही ये है कि हम सारा टाइम स्टार किड्स को ब्लेम करते रहते हैं, पर जो लोग बाहर से आए हैं वो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग यूनाइटेड आर क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। उनको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत हद तक देता हूँ। उसका रीजन है कि वो लोग, आप मत दो, मैं देता हूँ। उसका रीजन ये है कि उनके पास ऑप्शन नहीं, नए जो है, मैं नए वालों की बात कर रहा हूँ, जो सेटल्ड है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो मैंने बता दिया ना, 2 क्राइटेरिया है। जो नए हैं बेचारे वो खुद को सेटल कराने के लिए सब चीजें बर्दाश्त करते हैं, या एग्री करते हैं या बोलते हैं, अपना कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है तो वो चुप रह जाते हैं, या अपने कॉन्शियस को दबा के वो बोलते हैं जो बोलना होता है, एज यू से। दूसरा लॉट वो है जो पुराना लॉट है, जो बाहर से आया हुआ है, वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ गैंग होगा, इसीलिए वो अपोज कर रहा है। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है कि ये लोग। तो मैं कार्तिक आर्यन के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि कार्तिक आर्यन स्टार्टेड हिज बॉलीवुड करियर बिफोर सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है? करेक्ट, correct. He is, so according to that, he was 1 year older than Sushant Singh Rajput as far as Bollywood career is concerned. तो कार्तिक आर्यन कहाँ पहुंचा और सुशांत सिंह राजपूत कहाँ पहुंच गया था? बता देता हूँ। कार्तिक आर्यन जब तक उसकी, अभी एक कौन सी फिल्म आई थी ना, वो शादी, कौन सी थी? पति पत्नी और वो, नहीं, नो, उससे पहले टीटू की शादी, टीटू समथिंग, उसके बाद ही started getting recognition। तो जब तक वो फिल्म नहीं आई थी, Karthik Aryan was never considered a mainstream lead actor. Sushant was always from day one was the main lead actor. There's no comparison between Sushant Singh Rajput and Karthik Aryan. Karthik Aryan को तो अब लोग पूछने लगे हैं जब से ये फिल्में 1-2 आई हैं, फिर उसका फिल्म ही फ्लॉप हो रही है, उसकी सारी फिल्में ही फ्लॉप हो रही है। बट जब से ये आई है वो मेन स्ट्रीम एक्टिंग में आ रहा है। अदरवाइज जो भी मेन स्ट्रीम फिल्म रोल किए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। जब तक सुशांत था, सुशांत और कार्तिक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज Sushant had 7-8 big hits. Karthik struggled, and Karthik was never given a mainstream roles. Now he's being given. So there is no comparison between Sushant Singh Rajput and Karthik Aryan, because Sushant Singh was an A-grade actor, and Karthik did not fit in that A category actors. Yes. So there's a difference. Yes. So sir, मेरा मतलब कि मेरी debate यही है कि we also need to kind of open our minds and look at gangism and look at groupism as the reason. मैं नहीं, आपको मेरे हिसाब से एक चीज कहनी चाहिए हम लोग को, वो ये कि जो लोग बाहर से आए हैं, नए हों या पुराने हों, उनको ग्रुपिज्म और कार्टेलाइजेशन और गैंगिज्म से ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग एग्जैक्टली। अगर आप गलत एग्जाम्पल सेट कर दोगे तो उनका क्या होगा? एब्सोल्युटली, यू शुड स्टिक टुगेदर। आपको एक दूसरे के साथ स्टिक करना चाहिए। दैट्स द पॉइंट वी शुड make. Yes, so that is why I got this topic, because generally we are always criticizing nepotism and this, that and the other, but the main reasons are gangism, cartel, you know. So जो लोग बाहर से आ रहे हैं, yes, they are also cutting each other out. Yes, instead of getting into this together, इस ग्रुप को ज्वाइन करके दूसरों को काटने की बजाय अपना ग्रुप बनाओ और बाहर के लोगों को प्रमोट करो। Yes, आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। Correct. This is what we should be talking about, and that is what we should focus. That maybe time has come जहां पर मनोज बाजपेयी जैसे जो एक्टर्स हैं, जो पोजीशन पे हैं और बाहर से आए हैं, वो लोग एक ग्रुप बनाएं जिनमें सारे बाहर वालों को डालें और फिल्म बनाएं, जो बाहर से आए हैं वो लोग को लें और फिल्में बनाएं, उनमें बाहर के लोगों को ही लें कि लो भाई अमीनी को लेकर, और शिफ्ट करना है तो नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, आप वहां आ जाओ, मुंबई छोड़, खत्म कहानी। हाय भवेश, कांग्रेचुलेशंस। हेलो सर, थैंक यू सर। आपका जो कैमरा क्वालिटी होता है ना, वीडियो क्वालिटी, वो अच्छा नहीं होता, ऑडियो ठीक रहता है? नहीं, सही बोल रहे हैं आप, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं, स्पीड की प्रॉब्लम है क्या? स्पीड का प्रॉब्लम है सर, स्पीड का ही प्रॉब्लम। आप आजकल तो वाईफाई बहुत आप लगवा लो, वाईफाई अच्छे स्पीड हो, क्योंकि आप नहीं देते हो ना, पब्लिक बोलती है भवेश सर का चेहरा नहीं। बोलिए, कोई बात नहीं, ऑडियो आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं, आपने जो चालू किया बहुत अच्छा है, ये जो नया स्टेप लिया अच्छा है, और भी ऐसा कुछ करिए कि जिससे दूसरे लोग जो नई पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी करें। ऐसा कुछ अब लाएंगे और भी चीज, ये एक नॉवेल्टी है, बहुत अच्छा है, जिसमें कुछ बोलते ना कि नए लोग ज्यादा इसमें आए, जो न्यू जनरेशन को भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ है, न्यूज के साथ साथ कुछ है, रोबोट भी है, तो ये स्टेप आपका बहुत अच्छा है।
थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, आपको भी थैंक्स मैं बोलूंगा सर कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली इसमें। और दूसरी बात, आपने जो परसों जो एक प्रोग्राम किया था, आपने बोला कि परसों या उसके पहले शायद जो SSR का जो केस के बारे में आपने बताया था कि अभी बहुत सी पिक्चरें आ रही है और कुछ पिक्चरें जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो कई मतलब नहीं कि ठंडे बस्ते में नहीं है, वो धीरे धीरे हिट की ओर जा रही है, उनका ट्रेलर है नहीं, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, ये आपका कहना है, तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला था कि मुझे IMDb पे 2 फिल्मों का एग्जाम्पल दिया मैंने, शेरनी हाँ और हाँ हाँ क्या तापसी पन्नू की जो फिल्म है हसीन हाँ हाँ दिलरुबा, इन दोनों का जो IMDb रेटिंग आया है वो हाँ 5 to 7 के बीच आया। दैट्स व्हाट आई रेफर। बराबर। हाँ, तो ऐसे अगर समझो आगे और कुछ होता रहेगा या किसी को पता नहीं रहेगा और धीरे धीरे पिक्चर कुछ हिट हो रही है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो कोई क्या कर रहा है नहीं, जिसके मतलब कि बहुत लोगों ने स्टार्टिंग से जो अपोज किया था और अभी ये ठंडा पड़ रहा है, ऐसा आपका ही अपील था कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहले ऐसा नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग जो मतलब है कि जिन्होंने स्टैंड लिया है अभी, जैसे कि SSR के लिए ही कुछ करना है या फिर SSR की पिक्चर ही करनी चाहिए या फिर उसको जस्टिस मिलना चाहिए और हमें दूसरा कुछ बॉयकॉट करना है। अभी अगर वो अपने बोलते हैं कि बाकी सब पिक्चर है या सीरियल कैसे हिट हो रही है जो हमें पसंद नहीं है, या इस केस से जो इन्वॉल्व है वो आगे बढ़ रहे, किस तरह से बढ़ रहे, वो ट्राई रहती है, लेकिन फिर भी अगर वो आगे बढ़ जाता है तो पता नहीं कैसे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि जिन्होंने स्टैंड लिया है ना, वो दिल से लिया है, तो वो लोग तो एंड तक ट्राई करेंगे ही, ये बात है। कि सर मुझे भी इतना नहीं मालूम था इसके बारे में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने खुद जब ये केस चला जो 1 साल पहले जो भी हुआ, मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं भी, तो मैंने भी KBC फर्स्ट टाइम, मैंने एक सीजन KBC का छोड़ा नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने ना KBC का, मैंने सोनी जो चैनल था उस टाइम पे लॉक ही करा दिया था कि देखना ही नहीं है हमें, और बिग बॉस वो सब तो हम लोग देखते ही नहीं थे। तो ये एक्सटेंड मैंने भी लिया और अभी भी कायम है उस स्टैंड पे कि जो जितना हो सके हम तो करेंगे ही। तो ये बात है कि अगर आप ऐसा सोच रहे, हाँ थोड़ा ऐसा लगता है हमें भी कि भाई फलानी पिक्चर चल रही है, लेकिन आज भी उस केस से रिलेटेड जो भी अगर बंदा मेरा कोई कहना ये है रहेगा, कि आप जिस सिचुएशन में हो, आपको उस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने आईज और ईयर्स शट नहीं रख सकते। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। बराबर है आपका बोलना। और दूसरी बात है कि कभी क्या होता है नहीं कि जो पिक्चरें है ना ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होती है, हो सकता है कल के थिएटर खुल जाए, बराबर, अगर नॉर्थ में या कहीं और साउथ में पिक्चर हिट हो जाए, नॉर्थ में हिट हो जाए, बराबर, लेकिन इनका पैमाना है कि मुंबई जो है ना बेस है, बॉक्स ऑफिस मुंबई का ही रहा है, तो उनका है कि बोलने के रिकग्निशन जब तक मुंबई से नहीं मिलता ना तब तक उन लोग इसको सक्सेस नहीं गिनते, इसीलिए जो मुंबई का ना वो उनको तो एक टच मिलना मुझे चाहिए। एक चीज मुंबई समझ में बोलना नहीं आता, अब एक चीज बताओ, फिल्में अगर इनकी रेटिंग बढ़ रही है और फिल्में अगर लोग देख रहे हैं, मेरा दूसरा फ्लिप साइड है कि अगर ये है तो फिर तो हर जगह ऐसा नहीं है ना कि हर जगह के लोग इसको अपोज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप भाई मुंबई में फिल्म हिट करा के दिखा दो, आप नागपुर में हिट कराओ, आप कहीं और हिट कराओ, आप राजस्थान में चलवा लो, कहीं तो चलेगी ना फिल्म, ऐसा तो नहीं है फिल्म नहीं चलेगी। अगर कहीं नहीं चल रही है इसका मतलब है लोग एक्चुअली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये केवल ऑल इंडिया में सब जगह हो रहा है अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन है ना मुंबई में भी इसका ना एक हिडन रिस्पॉन्स मिला हुआ है। मैं एक एग्जांपल मिला, मैं ना भविष्य एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अभी हम लोगों ने एक चीज को क्रिटिसाइज किया, किसको, पिक्चर के, many you also listen to this and then if you want to add you can also connect. You are there? Annie is there? No, she is not there. Many, if you are listening please listen to this, I am adding something to this. तो ये एक पिक्चर हमने अभी देखा जो टूरिस्ट का है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा साइड आपको दिखाता हूँ। एक चीज तो ये है कि ये बहुत बड़ा खतरा है कोविड के लिए। अभी दूसरा एंगल इसका ये है, अपना फ्रेम ठीक कीजिए भवेश, आपका आप कैमरे से दूर हो रहे हो। ओके, हाँ नीचे करो, हाँ ठीक है। तो अभी दूसरा एंगल ये है भवेश कि अगर नहीं, अभी आपका फ्रेम ठीक नहीं है आपका, आप कैमरा को नीचे करो, आप नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा और कैमरे को दूर कर दो, आप कैमरे से थोड़ा दूर चले जाओ। यस, तो अभी दूसरा थोड़ा दूर करो कैमरे। तो दूसरा एंगल ये है कि एक कोई मूवी थिएटर में आप अगर जाते हैं, कोई भी मल्टी स्क्रीन थिएटर में, है ना, आप मुंबई में जाएं, दिल्ली में जाएं, कोलकाता में जाएं,
आप बैंगलोर में जाएं, हैदराबाद में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर वो आप पीवीआर या कोई भी जो हाई एंड थिएटर्स हैं उनमें अगर टिकट लेने जाते हो, कोई भी टिकट जो है वो 700-1000 रुपए से कम नहीं है, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक फैमिली है जो 5 लोगों की है, ठीक है। अब 5 लोगों ने 1200 रुपए का एक टिकट है जो स्लीपर टाइप सीट होती है, उसके 1200 रुपए टिकट है। 1200 रुपए अगर 5 लोग टिकट ले रहे हैं तो हो गया 6000 रुपए, ठीक है। अब आप वहां पर पॉपकॉर्न खरीदोगे 5 लोगों का, कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, कुछ और लोगे, तो समझिए 3000 रुपए और आपके गए, ठीक है। तो आपके 10,000 रुपए एक सिनेमा में मूवी देखने में चले गए, ठीक। अब अगर 10,000 रुपए में हम एक मूवी देख रहे हैं तो वही 5 लोग 10,000 रुपए में तो मसूरी घूम के आ जाएंगे। कैसे? कि 2,500 रुपए का 2 दिन का, 2,500 का 2 दिन का रूम मिलेगा, 1,500 2,000 में रूम मिल जाता है, तो 5,000 6,000 में आपका स्टे हो जाएगा। 5 लोग हैं, 2 रूम चाहिए होगा, 2 दिन के लिए रहे आप, 2 दिन आप रहे, 6,000 रुपए में आपने रह लिया, बराबर है। आप 3,000 4,000 रुपए में आपने पेट्रोल डलवाया, आप ट्रेवल भी कर गए इस डिस्टेंस में, ज्यादा अंतर नहीं हुआ। या मान लीजिए 1-2,000 रुपए और भी लगा, 2,000 रुपए 3,000 रुपए खाने में भी लगा दिए, तो 10,000 से 15,000 रुपए में आप मसूरी घूम के आ गए, यानी 12,000 15,000 में आप मसूरी घूम के आ जा रहे। तो भाई कोई देखने क्यों जाएगा? 10,000 रुपए में एक फिल्म देख रहा है, एक दिन 3 घंटे का 10,000 रुपए दे रहा है वो, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए मसूरी चला गया 15,000 रुपए में, खत्म। कोई क्यों मूवी देखेगा? आप मूवी का टिकट सस्ता करो, 50 रुपए 25 रुपए का मूवी टिकट मिलता नहीं है ना, मूवी का टिकट तो 1,200 रुपए का मिल रहा है, 1,000 रुपए का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है। तो भाई जब इतना ही खर्चा करना है तो हम मसूरी घूम के आ जाते हैं, जयपुर घूम के आ जाते हैं, नैनीताल घूम के आ जाते हैं, शिमला घूम के आ जाते हैं, चंडीगढ़ आ जाते हैं, अमृतसर चले जाते हैं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। लोगों ने पैसों को कैलकुलेट किया, सिनेमा को छोड़ा और मसूरी चल दी, अब मूवी नहीं देखें। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये भी हर्ट कर रहा है। ये दूसरा एंगल है इस भीड़ को लेकर। बराबर है, बराबर है। क्योंकि इन्होंने ना फिल्मों में, और फिल्म और क्या ना कि एंटरटेनमेंट जो है वो घर पे इन्होंने लॉकडाउन में देख लिया है, तो ऑल ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का ना पेट भर गया है। और दूसरी बात, इनकी ब्लैक साइड देखने मिली जो बॉलीवुड की, जो आज से पहले, जो बहुत साल पहले क्रिकेट में जो हुआ था, जो फिक्सिंग का पिक्चर बाहर आया था, उसके बाद से लोगों का जो मैच देखने का नजरिया चेंज हो गया था, और उसमें फिर बहुत फॉल डाउन हुआ था उसमें क्रिकेट में। शायद ये पॉइंट अभी, यही टर्निंग पॉइंट ये सुशांत सिंह का है, तो ये टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। भवेश, आपने तो लगातार क्रिकेट को फॉलो किया होगा, करेक्ट? एक टाइम था ना रवि शास्त्री खेलता था, करेक्ट? आज वो मैनेजर कोच है, लेकिन एक टाइम रवि शास्त्री का लोग चाहते थे कि वो टीम से चला जाए, राइट? अभी वो छक्का भी मारते थे, लोग रवि शास्त्री हाय है। अभी टीम से वर्चुअली धक्का मार के निकाला रवि शास्त्री को, धक्के मार, पब्लिक करते रही, तब जाके रवि शास्त्री निकले, है ना? वैसे ही मोहिंद्र अमरनाथ निकले, 25 फ्लॉप हो गए तो निकले, अजहरुद्दीन भी वैसे निकले। ये जो अपने दादा है, इनका भी ऐसे ही हालत हुआ, पब्लिक धक्के मार के निकले। अभी वो लग रहा है ऐसा सिचुएशन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। यहाँ पर इनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा कि भाई खान आप लोग। मुझे इसमें ना जो ऐसा हो रहा है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ ना, कि इन्होंने फिल्म से लेके फिल्म बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ओवरसीज राइट, फिल्म के इंस्ट्रूमेंट लेना और स्टूडियो भाड़े लेना, हर जगह पे उन्होंने अपना एक बना के रखा है मोनोपोली। यानी आप देखोगे तो न केवल आर्टिस्ट है, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो पुराने प्रोड्यूसर थे वो भी नहीं दिख रहे पिक्चर बनाए। अभी मैं बताता हूँ, इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लिया है ना, प्रोडक्शन भी ले लिया, एक्टर्स भी खुद, सब कुछ खुद, है ना। अभी अगर फिल्म नहीं चलेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा गया, आप ही का नुकसान, प्रोडक्शन का पैसा का आपका नुकसान, जो दूसरे एक्टर्स आपने हायर किए उसका नुकसान आप ही का, और तो आपने मार्केटिंग में खर्चा किया उसका नुकसान भी आप ही का, है ना। पहले क्या होता था, मार्केटिंग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, अब एक्टर्स का अलग, डायरेक्टर अलग, एक्टर अलग ना, तो प्रोड्यूसर अलग, सब अलग, तो सबका खर्चा भी अलग, सबका कॉस्ट भी अलग, सबका रिस्क भी अलग। अभी सारा रिस्क इन्होंने अपने में ले लिया, मतलब
सोने देने वाली मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी इनको चाहिए थी, इन्होंने कहा मैं बांटू क्यों, मैं ही रखूंगा सारे सोने के अंडे, है ना, तो इन्होंने सब अपने पॉकेट में रख लिया। अभी फिल्म फ्लॉप होगी तो सबसे पहले बर्बाद कौन होगा? वो तो है, लेकिन फिर भी एक आस लगाई हुई कि अभी नहीं तो जब भी खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, हम कुछ नहीं होता है। अभी एक बता देता हूँ लेटेस्ट, करण जौहर ने एक फिल्म बना रहे थे, करण जौहर, तख्त, है ना, तख्त वाज अ बिगेस्ट स्टार स्टडेड फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट, जिसमें रणवीर सिंह, जिसमें आई थिंक कार्तिक आर्यन, 7-8-10 अमिताभ बच्चन, करीना कपूर खान, ये सारे हैं 8-10 बड़े एक्टर्स। करण जौहर ने तख्त बनाने से मना कर दिया। करण जौहर ने मैं तख्त नहीं बनाऊंगा। क्यों? आप 9-10 एक्टर्स को लाने का मतलब है, अगर करीना कपूर खान को लेंगे तो 30 लाख रुपया, 30 करोड़ रुपया, ठीक है। एक्टर्स को, बड़े एक्टर्स को लोगे तो 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ तक देना पड़ सकता है, ठीक है। इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो लुटिया टूट जाएगी, है ना। तो उन्होंने डर के मारे तख्त बनाने से मना कर दिया। हम तख्त नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो लो बजट फिल्म, एक लव स्टोरी बना रहे हैं, लो बजट। क्यों? खर्चा कम होगा तो रिस्क भी कम है। तो ये लोग डर के काम, सर यही है, डरे हुए। ये मॉडल है ना, बहुत पहले चल रही थी। जैसे बताया ना कि इन्होंने साउथ की मूवी बाहुबली बनाई नहीं, क्योंकि वो रीमेक नहीं बन सकती है, वो नहीं बना, उसमें पैसा ज्यादा होगा, बराबर। लेकिन जो दूसरी जो पिक्चर थी, जो मराठी जो सैराट पिक्चर थी, वो बना सकते हैं, बराबर है। मैं और उसमें क्या ना लॉन्च भी कर सकते हैं। इन्होंने बनाया, वो तो सही है, लेकिन इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि सब कुछ हमारे पास ही आ जाना चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए। सब कुछ बराबर है। तो जब सब कुछ अपना चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, सब कुछ आप ही का है। सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा है कि ये एक जैसे बोला ना कि एक इनिंग भी आदमी खेल लेगा तो फिर वापस 50 मैच की रॉयल्टी मिलेगी। तो इन लोग यही सोच रहे कभी ना कभी लॉकडाउन हमारी मोनोपोली रहेगी। ये लोग वेट कर रहे हैं, देखो ट्राई ये लोग सोचते हैं। ये हमें मेरा असेसमेंट ये है भवेश कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये अपने खुद खोद रहे हैं। सब लोग सोच के बैठे कि वो सोचते ही रहे, फिल्म आती रहे, फ्लॉप होती रहे, बोला ना कि वो बोलते ना कि शायद बोलते ना कि ये उनका आखिरी हो सितम, ये सोच के हम सह गए। ऐसा उनको सहने दो ये सितम उनको। हर बार उनको सोचने लगा ये एक आखिरी सितम होगा, आखिरी सितम होगा। ज्यादा तेज बनने लगे ना, फिर वो अपने कब्र खुद खोदता है। ये इंडस्ट्री के जो महानुभाव लोग हैं, जिन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में ले लो, ये सेक्टर भी अपने हाथ में ले लो, वेस्टर्न सेक्टर भी अपने हाथ में ले लो, दिल्ली मुंबई सेक्टर इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है सारे एक्टर्स ने। अभी दिल्ली और मुंबई में फिल्म नहीं चली तो ये पिट जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने समझ के रखा है कि पब्लिक को मनोरंजन हम आज नहीं तो कल देंगे, और पब्लिक खुद आएगी। वो जो पिक्चर थी ना, ओ माय गॉड में, कि जो बोलते ना मिथुन चक्रवर्ती बोलता ना कि ये फियरफुल पीपल है, आज चले गए कल हमारे पास ही आने वाले। तो वो भी वही स्ट्रेटेजी में सोच रहे हैं, आज भी वही सोच रहे हैं, बराबर। लेकिन पब्लिक है जो 50% मुझे लग रहा है कि समझ गई है, 50% समझ गई, और बाकी की जो ना धीरे दूसरों को देख के उतना समझ जाएगी कि यहाँ पे समझे तो वो तो बात की बात है। इंडस्ट्री जो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है ना, इनको समझ में आना चाहिए स्ट्रेटजी नहीं चल रही है। मिस्टर करण जौहर ने छोड़ दिया तख्त बनाना। वो कहते हैं लो बजट फिल्म बनाऊंगा। क्यों भैया? ज्यादा पैसे निकाल दूंगा और खत्म हो गए तो कल मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? अभी इनको अपने सर्वाइवल की चिंता, पॉकेट से पैसा कम निकालो। अब ये कम पैसा निकालने लगे, कम पैसा निकालेंगे तो कभी जिंदगी में बाहुबली नहीं बना पाएंगे। ये साउथ इंडिया की फिल्म बनेगी, हम लोग वही फिल्म देखते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को तो फिल्म देखना है। हमको क्या फर्क पड़ता है कि ये फिल्म हॉलीवुड की है कि साउथ इंडिया की है कि मराठी फिल्म है, हम कोई भी देख लेंगे। ये लोग कम से कम पैसा खर्चा करने की तैयारी में है, यही लग रहा है मुझे। यस सर। सो मेरे को वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस की हम फाइट करते हैं। सो नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन। व्हाट इज हैपनिंग टू करण जौहर? Here you get it, your karma is speaking here. Please pay attention. What is happening to Karan Johar? He cannot fulfill his dreams of making Takht. He took away Sushant Singh Rajput's dreams. Now give an answer. Exactly the point. Today is announcing I will not make Takht.
No, so and sir, this is, and in fact, it's good this Karan Johar topic है, because I actually wanted to talk to you about this. कि how Karma is paying back Karan Johar. क्या reputation रहेगी आज Karan Johar के नाम पे? Karan Johar की एक भी मूवी आएगी, बाकियों की देखे ना देखे, Karan Johar की प्रोडक्शन हाउस के कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा. No, Karan Johar played it very smart. I will tell you, Dharma Productions ने, बाहुबली धर्मा प्रोडक्शंस की तो नहीं थी, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने उसको एज अ को प्रोड्यूसर ज्वाइन कर लिया, उसका प्रॉफिट बना लिया. They are playing it very smart. वो तो बात की बात है ना. मैं जस्टिस की बात कर रही हूँ इधर. He was making Dostana 2, which was the most recent movie of his that was supposed to come out. That is shelved. That has got shelved because of whatever. पता नहीं PR stunt है क्या है. Anyways, it is shelved as of now. Then उसकी गुंजन सक्सेना आई थी धर्मा प्रोडक्शन से. That was a flop. नहीं, hang on. शाहरुख खान ने जो फिल्म बनाना का डिसाइड किया था कार्तिक आर्यन के साथ, वो भी शेल्व कर दिया है. ये दोनों एक पार्टनर्स इन क्राइम है ना, दोनों ही दोस्त हैं, करेक्ट? तो शाहरुख खान ने भी फिल्म शेल्व कर दिया कार्तिक आर्यन के साथ, इन्होंने भी शेल्व कर दिया, अब इन्होंने तख्त भी शेल्व कर दिया. तो ये फिल्म ही शेल्व किए चले जा रहे हैं. यस, क्योंकि इनको लगता है जो लपेट लिया है ना उसको रखे रहो, कहीं निकल गया तो पता लगा सारा ही निकल गया. एक्चुअली निकल जाएगा, जैसे आता है ना वैसे ही चला भी जाता है. So that is what I am saying कि हम हमेशा जस्टिस की बात करते हैं. जिन लोगों ने सुशांत को तंग किया है ना, and Karan Johar has very openly, it's not a speculation, it's a fact. If you look at blind items को लेकर आज राजीव whatever, where is he working? Exactly. कौन अपना he's working with a Karan Johar company. So join the dots na. And he has written maximum blind items for Sushant. Sushant was so disturbed. I recently just saw his interview of Chetan Bhagat on Bollywood Hangama, जो उसने last year दी थी. I felt so emotional of what Chetan Bhagat was saying. And it makes sense how they were troubling Sushant by writing these items. Because he was a sensitive, self-respecting person. उसको मेंटली इतना मीटू एलिगेशन लगाकर उसकी मूवीज को उसको आइसोलेट करके उसके सारे प्रोजेक्ट्स लेके ये जो सब टी सीरीज वगैरह इतना मूवीज रिलीज कर रहे हैं, कौन सी मूवीज काम कर रही है उनकी? कोई मूवी काम नहीं कर रही है. और जो आप उस दिन बात कर रहे थे ना, वो कृति सेनन का जो सिस्टर का है फिलहाल, तो सर ये जो गाने हैं ना, गानों को व्यूज मिल जाती है. मैंने उसके बाद जाके रिसर्च भी करी है, क्योंकि सिद्धार्थ गुप्ता है हु इज सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड एंड ही स्टेड विद हिम. उसके वास्ते सॉन्ग है, वो तो बिलियन व्यूज है उसके, बिलियन. लास्ट ईयर रिलीज हुआ था. उसके जो भी वो म्यूजिक वीडियोस में आता है, उसके म्यूजिक वीडियोस. मुझे सिर्फ इतना पता है कि अल्टीमेटली आपके व्यूज इतने होंगे, आपको पैसे मिलते हैं. और वो शॉर्ट फिल्म है, बाय द वे. आपने उसको ठीक से देखा है, आप उस वीडियो को बाकी वीडियो से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा वीडियो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इट डजंट मैटर. आजकल सारी शॉर्ट फिल्म्स भी आती हैं वीडियोस की. You may claim that it doesn't matter, but the fact is that ultimately you need money and they are making money. This is a fact. So this is only songs. Karan Johar is shelving the movie not because he is scared, because he want to preserve his resources. That's why he's shelving these movies. I agree with you, but then finally it was his dream to make Tak na, वो चला गया ना सपना. Obviously. तो दोस्ताना 2 हम कब से सुन रहे हैं? Talk about poetic justice. Yes. दोस्ताना 2 हम कब से सुन रहे हैं? 2019 से रिलीज हो रही है. वो भी शेल्फ हो गई ना. Yes. जो अब करण जौहर का कोई नाम लेता नहीं है, पब्लिक इतना गुस्सा हो जाती है. The reason I'll tell you the reason. Reason ये है, अगर बगैर मतलब बड़ी बजट फिल्म, बिग बजट फिल्म, अगर वो फ्लॉप हो गई, तो लॉस इज equally as big as the budget. Yes, because now everything is in one place ना, like you're saying. पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था. कुछ पहले बहुत इंटेलिजेंटली कर लिया कि शाहरुख खान would sign a film and he will not take the money. What he will take is the profit. North India territory, Western India territory का जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, ये बोल के वो टेरिटरी ले रहे थे. डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने शुरू कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूट भी हम ही करेंगे, प्रोड्यूस भी हम ही करेंगे. रेड चिलीज ही प्रोड्यूस भी करेगा, एक्टर्स भी हम ही चुनेंगे. अभी क्या हो रहा है, आप ही रेड चिली ही प्रोड्यूस करेगा, रेड चिली ही एक्टर्स को पैसे देगा, रेड चिली ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. रेड चिलीज, आई एम जस्ट साइटिंग रेड चिलीज एग्जांपल. कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, धर्मा प्रोडक्शन हो, रेड चिली हो, अभिनव प्रोडक्शन हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, एक्स प्रोडक्शन विल ओनली प्रोड्यूस इट, एक्स प्रोडक्शन विल ओनली डिस्ट्रीब्यूट इट, एक्स प्रोडक्शन विल पे मनी टू द एक्टर्स व्हिच विल बी बिग मनी. एक्स प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही पैसा बचेगा जो मेल एक्टर का पैसा है, वो बच जाएगा. एक्स प्रोडक्शन अपने मार्केटिंग का भी खर्चा करेगा, पब्लिसिटी का भी खर्चा करेगा. अब अगर वो फिल्म फ्लॉप हो गई
तो X पर्सन के तो सब जगह से प्रॉफिट लॉस हो गया। पहले so they all have started making small movies and releasing them on OTT platform. तो अभी what they are doing is they are cutting down on that. They saying इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, पता लगे एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे, तो हम लो बजट फिल्म बनाएंगे और OTT में दिखा देंगे। जब सारे लोग भूल जाएंगे, जब सब कुछ नेचुरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम तख्त बनेंगे। This is the whole plan. सर वो भी करण जौहर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि करण जो बाकी with time maybe people will start watching other movies. मैं तो करण जौहर की कोई प्रोडक्शन देख ही नहीं रही हूँ, उसमें चाहे विजय देवगौड़ा आ जाए, प्रभास आ जाए या कोई भी आ जाए। We don't talk individual, we talk larger picture, right? So मैं ही कह रही हूँ ना, मैं तो कुछ बोल नहीं रही, मैं तो अपनी बात ही कर रही हूँ यहाँ पर। I'm not saying anything. I'm allowed to talk about larger picture. I think don't talk about yourself. You are one person. One person will not decide. The general mood will decide. तो जनरल मूड इनको एक चीज कर रहा है कि जनरल मूड इनको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, करेक्ट? yes. जिसके कारण ये कंफ्यूज हो गए। मे बी ऐसा सिचुएशन है नहीं, हो सकता है फिल्म रिलीज करे तो लोग देखने के लिए भी चले जाए, नहीं जाएंगे। पूरा बात तो बोलने दिया करो, पहले ही काट दिया। तो आप अरे यू डोंट लेट द पीपल इवन लिसन टू द वर्ड यस और नो। आई एम सेइंग अगर मान लो लोग देख भी ले तो इसके लिए फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी ना। इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस हिल गया है, तो इनका कॉन्फिडेंस भी हिल गया, इनका वो भरोसा ही नहीं है। ये सोचते हैं अगर रिलीज कर दी इतनी बड़ी फिल्म और बैनी नहीं गई, बाकी लोग नहीं गए, तो फिर ये लॉस कौन भुगतेगा? क्योंकि सारा चीज तो हमारे हाथ में है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं लेगा फिल्म, क्योंकि उसको डर लगेगा मुझे लॉस हो जाएगा, है ना? एक वाइब्स होता है ना, इट्स ऑल अबाउट सेम थिंग। इंप्रेशन इज वेरी सिंपल टू गो। अगर लगेगा कि प्रोड्यूसर पांव कतरा रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो 4 कदम पीछे भाग जाएगा। गेटिंग द पॉइंट कि उसको भरोसा ही नहीं, एक्टर भी कतरा रहा है, प्रोड्यूसर भी कतरा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी पीछे जा रहा है। अभी एक्टर भी सोचने लगेगा मैं ये फिल्म करूं या मैं लो बजट फिल्म करूं, और ये फ्लॉप हो गई तो मेरे हाथ में एक फ्लॉप आ जाएगी। तो एक्टर्स भी तो कंफ्यूज हो सकता है कार्तिक आर्यन ने इनकी फिल्म छोड़ दी हो क्योंकि उसको लगा हो कि बर्बाद हो जाऊंगा, इनके साथ तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। हो सकता है, दैट्स अ पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग नो नो दैट्स ऑल पॉसिबल कि हो सकता है कार्तिक आर्यन ने सोचा हो कि ऐसा मूड है कि अगर इसमें मैंने ये फिल्म की तो जो बचेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, तो मैं भी छोटे बजट फिल्म करता हूँ। राजकुमार राव की एक के बाद एक फिल्म चली आ रही है। सर आई वांट टू से ओवर हियर कि आप कह रहे थे ना कि ये सुशांत सिंह राजपूत के बाद व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड, व्हाट इज इट दैट द पब्लिक हैज डन दैट हैज मेड चेंजेस इन बॉलीवुड टुडे? सुशांत सिंह राजपूत and all the SSRians have created such fear in the film industry कि वो डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत has become the top most शेल्फ नहीं होती। Yes, सुशांत सिंह राजपूत's name is so big today कि पूरी बॉलीवुड उससे डरी हुई है। उस इंटरव्यूज में उसका कोई नाम भी नहीं लेता है, इतने डरे हुए हैं वो। नहीं गलती से कुछ ऐसे हो गया तो मीडिया ट्विस्ट ना कर दे। तख्त शेल्फ हो गई है। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन नीड्स टू क्लैरिफाई कि क्यों शेल्फ हो गई है। सर मनी नहीं है ना। वो तो करीना कपूर की इंटरव्यू मैंने बहुत पहले देखी थी, उसी टाइम पे उसने बोल दिया था लास्ट ईयर कि अभी तक नहीं बनने वाली, उसने उसी टाइम पे बोल दिया था। I'm talking about nearly a year back. Because so Karan Johar today, new strategy is that you release a magazine में picture and you talk about you market your pregnancy or delivery or baby birth and you I don't know whether you are paid for that also. I don't know. That I don't care about. वो उसकी personal life है, उसकी personal. No, it's not personal. Sorry, what are you saying? You are calling it as a what is it? She has called it Bible. Pregnancy Bible, something of that sort. How are you saying it's personal? She has done a proper, given a proper interview, written a book. She's calling it a Bible. She's giving you tips of pregnancy or delivery, and then you are saying it's personal. कैसे personal है? Public को बोल रहे पढ़ो, ये Bible है. मैंने उसके बारे में मुझे इतना research है. Teaching you what you should be doing during pregnancy. So women will take lectures from her to know what they should be doing during pregnancy. ये क्या मजाक हो रहा है? ये मतलब क्या चल रहा है? तो सर हमारे लोग बताएंगे प्रेगनेंसी का बाइबल कौन लिखता है? तो सर मेरे को ये भी बोलना है कि आप पब्लिक आपके साथ इतना गुस्सा है, आपने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या किया है? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात? तो आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि भाई जितना इंपॉर्टेंट
फिल्मों का बॉयकॉट अगर आप लोगों के लिए हो गया है, जो आप लोग बड़ा फोकस कर रहे हो, बोल रहे हो कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप लोगों की निगाह तो बाकी चीजों में पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। क्यों? अवेयरनेस होती है। नहीं है। नहीं, अवेयरनेस करते हैं हम, जरूरी नहीं है हम उनको प्रॉफिट देंगे, अवेयरनेस करना हमारा काम है। वी नीड टू बी अवेयर। दुश्मन की हर एक मूव का हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम उनको हराएंगे कैसे? आप मूव बनाते रहो, आप इंतजार करते रहो, आप फिल्मों को मैंने उसके बाद वो तरीके ढूंढते रहेंगे। तो ढूंढने दीजिए, उनको ढूंढने दीजिए ना। वही रेस्टलेस तो वो हो रहे हैं ना, हम तो नहीं हो रहे, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। चाहे आपस में डिफरेंट टॉपिक्स चलते रहे हों, पर जब देखने की बारी आएगी ना, सब एक हो जाएंगे। आप देखते रहना, अभी अब सब अपने बैठ के पैसे बना रहे हैं, ये ऐसे हो गया, वो थ्योरी होगी, ये थ्योरी होगी। जब काम करने की बारी आएगी ना, सब ऐसे सारे हम एक होंगे, अब देखते रहना। ओके, कब काम करने वाली, जब केस बंद हो जाएगा? केस तो सर मेरे तो बाल सफेद हो गए, मैं तो सोची मेरे और बाल सफेद हो जाएंगे, पता नहीं कितने साल हम ऐसे बैठ के बातें करेंगे। I don't know. Any other point you have to make, Mani? No sir, this is what I wanted to say. Thank you so much.